Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new daily news digest session. Today is 11th of November, 11/11, and I have a couple of articles from the Indian Express जो आज मैं चाहूंगा डिस्कस करना स्टूडेंट्स के साथ. पहला आर्टिकल है आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर. आयुष्मान हैज बीन expanded and over 2 lakh elderly people have joined in a week after rollout. तो आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर ये आर्टिकल है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव क्योंकि इस आर्टिकल में ढेर सारा डेटा है. तो एज वी आर ऑल अवेयर that the Honorable Prime Minister has expanded the ambit of Ayushman Bharat scheme. He recently launched that every individual above the age of 70 is going to be receiving cards under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. तो अपने आप में ये गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सेक्टर से देखा जाए तो फ्लैगशिप स्कीम है एंड स्टूडेंट्स शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्कीम. फिर इसमें यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है नीचे आर्टिकल में कि 32,000 एडिशनल बेनिफिशियरीज हु आर अबव द एज ऑफ 70 have already been covered under the scheme based on income criteria. मतलब there is a certain set criteria. If you belong to that particular income or lower than that, you are eligible for Ayushman Bharat. And they have also re-registered to avail the cover of rupees 5 lakh provided in the extended version with no income limit. क्योंकि 70 से ऊपर का जो slab है, age group of 70 to above, there is no income limit whatsoever in that. So everybody is going to be accepted into this particular fold of 5 lakh insurance. फिर कुछ कार्ड्स से रिलेटेड डेटा लिखा हुआ है. दैट इज केरला हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू बेनिफिशियरीज फॉलोड बाय स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. नंबर्स चाहे तो याद कर सकते हैं बट अपने आप में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द एम्बिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. फिर नीचे इसमें कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं जहां पे स्कीम का एप्लीकेशन नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स डू नॉट कवर दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज दीज states have opted out of this particular scheme. And apart from this, what also needs to be remembered is कि ये scheme है क्या और काम क्या है इसका. तो it was launched first in 2018 and Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is the world's largest health insurance program of its kind and which has witnessed 6.86 crore hospital admissions. तो ये नंबर आपके आंसर्स में आप डेटा के रूप में लिख सकते हैं. It provides 5 lakh का annual insurance and is aimed to comprise the bottom 40% of the population economically. So the ambit is those people who belong to the bottom population pyramid या who have low incomes, they are to be added into this particular scheme. तो ये आर्टिकल मेरे हिसाब से नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से आप डेटा यूज कर सकते हैं फॉर योर आंसर्स इन द मेंस. The second article basically is about the draft data protection rules. अब इस आर्टिकल में लिखा है कि सेंटर is looking to get its own house in order. What does it mean by it? 2023 में द गवर्नमेंट केम अप विथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 एंड इसको लास्ट ईयर इनैक्ट किया गया था. एंड दिस इज एन आर्टिकल जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो साथ में आने हैं बट दोज रूल्स हैव नॉट बीन बेसिकली कमिंग इनटू पिक्चर एज ऑफ नाउ. लॉ को भी अभी असेंट नहीं मिला है एंड इट हैज नॉट कम इनटू फोर्स बिकॉज इट हैज नॉट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट फॉर नाउ. बहुत सारे पब्लिक कॉलेजेस हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो फार फ्लंग एरियाज में हैं और जिनमें बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है. अब टेक्नोलॉजी बेसिक होगी तो उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि देयर इज अ चांस ऑफ हैकिंग, देयर इज अ चांस ऑफ दैट particular data being compromised. So this also needs to be taken into consideration. जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल में एग्जांपल लिखा, children, individuals below the age of 18 would have to seek consent for processing their data from their parents or guardians because minors की डेटा की बात हो रही है तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स गार्डियंस उनका कंसेंट लेना पड़ेगा. However, the government soon realized that it would be difficult to prescribe a particular mechanism or technological intervention to gather such consent and is understood to have given up on the idea. Because हर बार किसी माइनर का डेटा अगर आपको कलेक्ट करना है तो लॉजिस्टिकली दिस इज गोइंग टू बिकम अ नाइटमेयर टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम देयर गार्डियंस एवरी सिंगल टाइम. तो इस केस में द आईटी मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू लीव इट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कंपनीज ऑन हाउ दे वांट टू सीक सच कंटेंट अंडर द अपकमिंग डेटा प्रोटेक्शन रूल्स. दिस हाउएवर is prone to misuse. तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे मिसयूज होने का खतरा बना रहता है. फिर इसमें एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन और लिखा हुआ है which is the wide ranging exemptions that the law offers to the government agencies. सेक्शन 17 की बात हुई है यहाँ पे of the data protection law which basically talks about the instrumentality of the state as the central government may notify in the interest of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, maintenance of public order. ये सारे terms हैं and these terms have not been defined well. तो डेटा का मिसयूज बिकम्स अ पॉसिबिलिटी.
So this is the reason why the draft data protection rules still are a work in progress. And students को GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है. तो now I would like to invite Kanhaiya sir to take this particular discussion forward. आज जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू से मैंने लिया है, ये वाला जो आर्टिकल है, दिस इज रिगार्डिंग द हेल्थ स्पेंडिंग ऑफ वेरियस लोअर इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. तो इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक का एक पेपर आया है जिसने कुछ डाटा दिया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात कर रहा है कि हम तो 2030 तक इसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, तो गोल नंबर 3. ये हमें याद रखना है, हम कोट कर सकते हैं इसको आंसर्स में. डाटा क्या बोलता है, जो वर्ल्ड बैंक का पेपर है, इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग इन 63 LICs which means lower income countries and LMICs which means lower middle income countries by analyzing data from 2019 to 2023 with comparison to pre-pandemic trend from 2015 to 2019. तो प्री पेंडेमिक क्या ट्रेंड था और पोस्ट पेंडेमिक या 2019 से लेकर 23 तक, पेंडेमिक के बाद और पेंडेमिक के दौरान क्या उसका ट्रेंड रहा है, दोनों का कंपैरिजन ये रिपोर्ट बताती है. Now, the study highlights an initial spike in health spending during the pandemic, followed by steady decline. तो जो पेंडेमिक पीरियड था वहां पर बाकी कंट्रीज में भी देखा गया कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लिटिल स्पाइक वाज देयर इन द स्पेंडिंग, एंड लेटर ऑन वो स्टडी डिक्लाइन देखा गया है उसमें. तो बाद में धीरे धीरे स्पेंडिंग जो है वो कम होती गई. यहाँ पर जो डाटा दे रखा है, बिटवीन 2019 एंड 2023 गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा ग्रू ओनली मॉडेस्टली, constrained by the decreasing share of health within overall government budgets as the general government expenditure rose faster than health spending. तो दूसरा जो एक्सपेंडिचर था वो हेल्थ स्पेंडिंग से ज्यादा परसेंटेज से राइज किया है एज कम्पेयर टू दिस हेल्थ स्पेंडिंग. तो ये यहाँ पर डाटा दे रखा है 19 to 2023. देयर इज अ रिस्क for 35 nations including India where the government health spending per capita and health spending's budget share has have dropped. तो ये एक बड़ा रिस्क है because due to this we're not going to achieve the sustainable development goal by 2030. तो ये एक important रिस्क है जो पेपर को, ये जो पेपर ये हाईलाइट कर रहा है वर्ल्ड बैंक. यहाँ पर एक डाटा और दे रखा है, the LIC spending surged in 2020 but since fell back to nearly pre-pandemic level reaching approximately $10 per capita in 2023. Similarly, LMIC's spending dropped from its 2021 peak. तो यहाँ पर अब ग्राफ में भी देख सकते हो कि कैसे ये पेंडेमिक के टाइम 2020 में पीक करता है, उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाता है. इस वाले इसमें परसेंटेज भी आप देख रहे हो कि 2015 और 19 के बीच का जो एवरेज है उससे कंपेयर किया गया है कि एनुअल ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिंग spending per capita was significantly higher at 4.2% in LICs and 2.4% in LMICs. तो ये चार्ट 2 जो है ये बता रहा है कि 15 से 19 के बीच में ये इसका डाटा था, जो 19 से 23 के बीच में इतना ड्रॉप हो गया है. तो ये दोनों का कंपैरिजन है. इंडिया के केस में बात करें तो जो लास्ट वाला चार्ट है इंडिया की बात करता है. इंडिया इज वन ऑफ द LMIC countries where health spending has significantly decreased since its peak during the pandemic. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक के ड्यूरेशन में ये 2% से ऊपर चला गया था, 2% ऑफ द GDP जो हेल्थ स्पेंडिंग है. उसके बाद धीरे धीरे फिर डिक्रीज होकर वापस से 2% के नीचे आ गया है 2023 के बाद. तो health share in the budget surpassed the 2% mark in financial year 18 and remained elevated during the pandemic years, only to drop to 1.7 to 1.85% in the year that followed. तो पेंडेमिक के बाद वापस से डिक्रीज हो गया है. तो ये एक बड़ा कंसर्न है विच इज अफेक्टिंग द टारगेट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और वो अचीव करने में क्या टारगेट्स है. तो ये जो डाटा है ये ऐसे में भी यूज किया जा सकता है, GS में भी यूज किया जा सकता है. तो इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है ये वर्ल्ड लेवल पर प्लस इंडिया लेवल पर दोनों को नोट डाउन करना चाहिए अपनी डाटा बुक में. तो ये उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल. सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड. नाउ आई विल इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू द डिस्कशन. थैंक यू सर. मतलब आपके आर्टिकल में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हैं कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का है वो इन्विसेज करता है कि 2.5% ऑफ GDP जो है इंडिया वो अपने हेल्थ पे खर्च करे, बट अभी तक वो हो नहीं यस सर. पाया. So now moving to my article, there were few good articles and I found this very important for the point of view of prelims and mains also, GS paper 3. तो ये this article has been news regarding the tragic death of the tiger elephants in
बांधवगढ़ टाइगर एंड नेशनल पार्क जो है। तो पहली बात, जो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और ये पार्क नेशनल पार्क है, ये एग्जैक्टली किस स्टेट में आता है, वी ऑल नो, मध्य प्रदेश में। इन विच डिस्ट्रिक्ट? इट इज इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट। एंड देन क्वेश्चंस आर लार्जली बीन आस्क्ड लाइक कि कोई geographical boundaries है, जैसे इट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्टेट, टचिंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द सतपुरा रेंजेस। तो इस तरह के क्वेश्चन वो बनते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और जो नेशनल पार्क है, इसकी ज्योग्राफी और लोकेशन पहले स्टूडेंट नोट डाउन कर लें। देन देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ लाइक साइक्लोपियाजोनिक एसिड। ये एक तरह का माइकोटॉक्सिन है, जिसकी वजह से, खाने के वजह से इन एलिफेंट्स की डेथ हुई। तो इट इज अ माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन आर दो दैट आर लाइक इमिटेड बाय फंगस। और एक तरह का मिलता जुलता है जो ऑलवेज न्यूज में रहता है, वो एफेलोटॉक्सिन्स। तो एफेलोटॉक्सिन्स और इसमें क्या अंतर है, स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हैं। एंड देन देयर इज लाइक, एंड विच स्पीसीज ऑफ फंजाई secretes such type of toxins, mainly आगे आके आएगा, एक अर्गोट आता है, वो क्लैविसेप्स, एक फंगस होता है क्लैविसेप्स, जनरली वो इसको एमिट करते हैं। देन देयर इज ऑल्सो लाइक एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, वो भी ये जो टॉक्सिन है इसको एमिट करते हैं। देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ लाइक कोडो मिलेट। ये कोडो मिलेट के खाने की वजह से ही इन एलिफेंट्स की ट्रेजिक डेथ हुई है। तो कोडो मिलेट इज अ माइनर मिनरल होता है ये। एंड अभी कुछ दिन पहले ही हमने मिलेट्स पे बात की थी। तो दिस कोडो मिलेट हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो इन अ वेरी nutrient deficient condition also, harsh weather also. That's why it is like grown all across India. पुरानी history है, और it is rich in minerals and everything, and it's a rich source of antioxidants as well. तो ये कोडो मिलेट जो है एक माइनर मिनरल, इंडिया में इसका वेरियस स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम है, ओवरऑल इसका नाम कोडो मिलेट है, ठीक है। एंड बात वही कर रहे हैं जो भी मैंने बात बताई आपको। तो ये जो कोडो मिलेट है, एग्जैक्टली इसमें इट इज वेरी प्रोन टू द फंगल इन्फेक्शन इन द व्हेन देयर इज अ हाइटेंड मॉइस्चर कंडीशन, रेनफॉल ज्यादा हो रही है, ऑल्दो इट्स ग्रोज इन अ सॉर्ट ऑफ ड्राई कंडीशन, बट व्हेन देयर इज लाइक चांस हाई रेनफॉल, देयर आर चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, एंड दैट हैज हैपेंड। तो ये बात वही कर रही है कि अर्गोट इज अ पैरासाइटिक फंगल इंडोफाइट। प्लांट के अंदर होता है, एक एक्सोफाइट होता है, एक इंडोफाइट होता है, दैट ग्रोज इनसाइड द प्लांट इज इंडोफाइट, ओके। सो कोडोमिलेट कंजम्पशन इज ऑफन फाउंड टू बी कॉज पॉइजनिंग। बात आती है कि ये साइक्लोपेनाजोइक एसिड जो है, वो किस तरह का कंडीशन क्रिएट करता है। इट कैन कॉज डिजीज बाय, आप देखोगे तो ये न्यूरोटॉक्सिन होता है एक तरह से, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज, हेल्थ कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर देता है। You can see that cell degeneration, necrosis, liver dysfunction, मायोकार्डियम, हार्ट मसल्स में डिस्फंक्शन, ये सब तरह के कंडीशंस वो क्रिएट कर देता है। तो एंड देन देयर इज अ लाइक, व्हाट आर लाइक फंगल इन्फेक्शंस को आप कैसे चेक कर सकते हैं। इट इज वेरी लाइक ट्रिकी सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज यू विल हैव सॉर्ट ऑफ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट लाइक, इसमें बात हो रही क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी, जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग टेक्निकल चैलेंजेस इस डोमेन में, कि वी वर नॉट एबल, लाइक दोज फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वर नॉट एबल टू डिमार्केट इट, लाइक ये फंगली इन्फेक्टेड था या नहीं था, बिकॉज इट वॉज लुकिंग ऑल गुड। एंड बिकॉज दीज सॉर्ट ऑफ ग्रेन्स जो होते हैं, उनके अंदर जो पॉइजन होता है अंदर हार्बर होता है। तो दैट्स व्हाई व्हेन इट लुक सेफ, बट व्हेन दे एट इट, इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो गई। तो आई थिंक दिस इज अ बेसिक टेक अवे फ्रॉम दीज आर्टिकल्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वी आर लाइक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कौन सी स्पीसीज ने इसको क्रिएट किया, साइक्लोपेनाजोइक एसिड के बारे में, एफेलोटॉक्सिन्स के बारे में। They should note these things down, and it is very important from point of view of the GS paper 3, from the term of environment also, and from the term of science and tech also. So this is all from today's edition of DND. I hope you like it. We will meet you tomorrow. Thank you all.